Hello students, very pleasant good morning to you all. Welcome in my class, the class of accountancy of class 12, and today we are continuing the topic which is going through in the previous class, that is the issue of debenture and the concept related to that. And today we will deal with the accounting treatment in the case of issue of debenture. Okay, and in this class we came to know that how the accounting treatment in the books of a company are made in the case of issue of debenture. What are the various transactions that took place while issuing the debenture and how it will be recorded in the books of company as per the double entry system and as per the rule of keeping books of account and accomplishing the objectives of account while preparing these books of account. Okay, so let's start. Let's deal with the books of account in the case of issue of debenture. Students, we are going to deal with the accounting treatment of issue of debenture in the books of company. As we know that when we issue a debenture or any other security, we should very well clear that these securities are issued for the purpose of raising fund and for which the company will demand these amount from the general public, and apart of that the public will make response and give the concerned amount as per their interest and as per their potential. So basically all the transactions of the debenture are categorized under two categories. Basically these two categories are due and receive. Basically these two categories are concerned with the transaction of demand and the transaction of response of that demand in the form of receiving. Okay, and when we talk about the accounting treatment as per the rule of double entry system, when the company makes some demand for any transaction, simply we have to know that the entire amount is not called by the company for one time. For the convenience of public and for the convenience of its own company, if the company issue the shares of ₹100 each, this 100 rupees are demanded by the company in fact several transactions. Suppose company is targeting to collect ₹20 at the time of application, and with ensuring the amount of application, it call ₹30 on allotting the share to the interested applicants, and some more transactions are called, that is simply known as calls. Okay, as per the number of these calls, these are known as first call, second call, and final call, and so on. Okay, so basically as I said, for the convenience of the public and for the convenience of its own, company decide to collect the entire amount in several transactions for several times. Suppose the company is willing to make some collect some amount on the application as well as some amount on allotment also, as well as some amount on first call and some amount on second and final call, and so on. If the company is interested to collect the transaction in many more transactions, then this call will be moved up to first call, second call, third call, and so on. ठीक है, तो जब कंपनी जो है इस पैसे को मांगती है, उसका डिमांड करती है, तो जिस पैसे को जिस ट्रांजेक्शन के लिए, these are transaction, these are simply transaction on which the company will make some demand. These are simply the transaction on which the company makes some demand. ठीक है, तो जब कंपनी पैसे का डिमांड करती है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आकर के हम क्या लिख देते हैं, शेयर्स
अल्टीमेटली हमने शेयर्स पिछले ट्रांजेक्शन में पढ़ा था, यहाँ पे हम X% डिवेंचर डेबिट करते हैं, ठीक है, टू यहाँ पे डिवेंचर का ट्रांजेक्शन लिख देते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है, और इस X% को यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं क्रेडिट साइड इन द एंट्री ऑफ ड्यू, ठीक है, डिवेंचर की ड्यू की एंट्री में हम ट्रांजेक्शन को क्रेडिट कर देते हैं विद द नेम ऑफ डिवेंचर, ठीक है, और ये एंट्री हो जाती है हमारे ड्यू की। सपोज वी आर डिमांडिंग द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में डिवेंचर एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट हो जाएगा। सपोज वी आर डिमांडिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ कॉल, तो यहाँ एप्लीकेशन की जगह फर्स्ट कॉल हो जाएगा। या जिस भी ट्रांजेक्शन का पैसा मांग रहे हैं हम, वहाँ पे उस ट्रांजेक्शन के नाम को हम डेबिट कर देंगे, और अल्टीमेटली क्रेडिट में आपका जो भी X% डिवेंचर है, ये X% क्या है, X% इज द कूपन रेट विच इज मेंशन इन द कंपनीज डिवेंचर। कंपनी ने डिवेंचर पे जो भी कूपन रेट स्पेसिफाई किया है, उस कूपन रेट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे कंपनी ने 10% डिवेंचर इशू किए हैं, तो यहाँ पे 10% डिवेंचर मेंशन किए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई ड्यू की एंट्री। हम जब भी पैसे की डिमांड करेंगे फ्रॉम जनरल पब्लिक, वी विल मेंशन द अकाउंट द डिवेंचर ट्रांजेक्शन इन डेबिट साइड एंड द डिवेंचर इन क्रेडिट साइड, एंड एज पर द रिस्पांस वी विल कलेक्ट सम अमाउंट। ओके, रिस्पांस जब होगा पब्लिक से, तो हम पब्लिक से कुछ पैसे कलेक्ट करेंगे। इन दैट केस आवर बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट विल बी debited, and the amount for which is collected from whatever the transaction, उस ट्रांजेक्शन को हम डेबिट कर देंगे और एंट्री हो जाएगी डिवेंचर ट्रांजेक्शन क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सपोज विद द ट्रांजेक्शन द मनी इज कलेक्टेड फॉर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट फॉर डिवेंचर एप्लीकेशन। अगर मनी हम अलॉटमेंट के लिए कलेक्ट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन, जिस भी ट्रांजेक्शन के लिए हमने पैसा कलेक्ट किया है या कलेक्ट करने की कोशिश की है, उसे सिंपली हम डिवेंचर ट्रांजेक्शन के नाम से दिखाएंगे। जो भी ट्रांजेक्शन होगा उस ट्रांजेक्शन का नाम यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। एज आई टोल्ड यू, द ट्रांजेक्शन आर वाइडली कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरीज: एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। व्हाटएवर द नंबर ऑफ कॉल विल बी आल्सो मेंशन बिफोर द कॉल। ओके, तो दिस वाज द बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जैसा मैंने कहा कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं डिवेंचर के, तो डिवेंचर कंपनी ने इशू किया है फॉर रेजिंग फंड। अब जब फंड की रेजिंग की बात आएगी, फंड की रेजिंग की सिचुएशन बनेगी, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो डिवेंचर है या जो भी सिक्योरिटीज है, कंपनी पहले उससे पैसा मांगेगी उसका, और उसके बाद उसका पैसा एज अ रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जब पैसा मिलेगा, मतलब डिमांड करेगी कंपनी, तो ऐसी कंडीशन में डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट या डिवेंचर जो भी ट्रांजेक्शन है उसको डेबिट करेंगे, फिर X% डिवेंचर क्रेडिट करेंगे। यहाँ X% क्या है, X% है कूपन रेट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी ने डिवेंचर पे स्पेसिफाई किया है, ठीक है। और अगर 0 कूपन रेट है, यानी कंपनी ने कोई डिवेंचर का रेट स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में हम केवल डिवेंचर अकाउंट लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट को मेंशन नहीं करेंगे। फिर इस डिमांड के बदले में जब कंपनी पैसा कलेक्ट करेगी, तो ऐसी कंडीशन में जितना पैसा कंपनी कलेक्ट कर रही है उसे बैंक अकाउंट से डेबिट किया जाएगा, और जिस ट्रांजेक्शन के कारण कलेक्ट कर रही है उसे डिवेंचर ट्रांजेक्शन अकाउंट के नाम से क्रेडिट किया जाएगा। जो भी ट्रांजेक्शन का नाम है वहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देंगे, आइदर इट इज एप्लीकेशन और अलॉटमेंट और एनी अदर कॉल। यहाँ पे एक बात जो कंसिडरेबल है वो केवल ये है दैट नरेशन शुड बी आल्सो देयर बी डिवेंचर अलॉटमेंट, या जो भी ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन अमाउंट का नाम लिखेंगे, एंड मनी रिसीव, ठीक है। ओके, अब ये जो है नरेशन के साथ जो है एंट्री कंप्लीट हो गई।
अब यहाँ पे एक कंसिडरिंग पॉइंट ये है कि जब भी हम एंट्री लिखेंगे तो अमाउंट के लिए हमेशा याद रखें कि अमाउंट के लिए नंबर ऑफ डिवेंचर should be multiplied with the price of transaction. Price of transaction. ट्रांजेक्शन का जो भी प्राइस है उससे हम मल्टीप्लाई करके अमाउंट हम निकाल देंगे उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की, और वही अमाउंट जर्नल एंट्री के अमाउंट वाले कॉलम में पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब इसकी सीक्वेंस को हमेशा याद रखें, जैसा मैंने कहा कि ट्रांजेक्शन कई सारे होते हैं। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन की सीक्वेंस को याद रखिए। सीक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन इज बेसिकली sequence of transaction are application in the initial and then allotment later on, after that application transaction has been completely made, and after that we will make the transaction and treatment of calls. In such case, when we record the transaction of application, we initially record the transaction of receive and then make the treatment of due, which is also known as transfer treatment. Because the amount is already collected, we will not demand, we will transfer the amount, and in the case of allotment, we will initially make the demand and later on we will record the transaction of receiving, and the same treatment will be made in the case of calls also. We will initially make the demand entry and after that we will make the receiving entry as soon as possible. ठीक है, दिस वॉज द सीक्वेंस। जब कंपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करती है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करेगी। एप्लीकेशन में रिसीव की एंट्री पहले, ड्यू की एंट्री बाद में, यहाँ ड्यू की एंट्री को ट्रांसफ़र की एंट्री भी कहते हैं। और इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री हम पास करेंगे तो उसमें ड्यू की एंट्री पहले और रिसीव की एंट्री बाद में। और इसके बाद जब हम कॉल की एंट्री करेंगे पास तो वहाँ पे ड्यू की एंट्री पहले और रिसीव की एंट्री बाद में। For your convenience, this transaction, this sequence is characterized as RD, DR, DR. Okay, what is this R? R stand for receive and D stand for due. And this is the sequence where you initially record the application, later on you record the allotment, and lastly you have recorded the transaction of calls. Okay, hope this sequence is very much clear to you. हमने क्या किया, सबसे पहले ट्रांजेक्शन को स्पेसिफाई किया दो कैटेगरीज में, पहली ड्यू और दूसरी रिसीव। ड्यू में हमने क्या बताया, हम कंपनी के रूप में पब्लिक से पैसे की डिमांड करते हैं, और रिसीव में उस डिमांड की रिस्पांस आती है फ्रॉम द पब्लिक। जब हम ड्यू करते हैं तो ड्यू में डिवेंचर एप्लीकेशन या जो भी ट्रांजेक्शन है उसका नाम डेबिट करेंगे, टू X% डिवेंचर हम क्रेडिट करेंगे। ये X% क्या है मैंने क्लियरली बताया, X% है आपका कूपन रेट जो कंपनी ने स्पेसिफाई किया है ऑन द डिवेंचर। इसके बाद हम अल्टीमेटली रिसीविंग की एंट्री करते हैं। रिसीविंग की एंट्री जो है क्या हो जाएगी, जो भी पैसा हम कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द बैंक वो जो है बैंक अकाउंट के नाम से डेबिट हो जाएगा, टू डिवेंचर ट्रांजैक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यानी उस ट्रांजैक्शन का नाम हम मेंशन करेंगे जिस ट्रांजैक्शन के कारण हम पैसे कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है सीक्वेंस की बात हमने की, तो सीक्वेंस हमेशा याद रखें, सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री होगी, एप्लीकेशन में पहले रिसीव की फिर ड्यू की, और यहाँ ड्यू को ट्रांसफर के नाम से भी बोला जाता है, ट्रांसफर की एंट्री करना, और अलॉटमेंट में ड्यू देन रिसीव, और यही सीक्वेंस कॉल में भी रहता है, पहले ड्यू और रिसीव। यानी कुल मिलाकर बात करें
तो एप्लीकेशन को छोड़ करके बाकी ट्रांजेक्शन में पहले ड्यू और रिसीव की एंट्री होती है उसके बाद, लेकिन एप्लीकेशन में अपोजिट, यानी रिसीव की एंट्री पहले, ड्यू की एंट्री बाद। ठीक है, और इसको शॉर्टकट में हमने सीक्वेंस दिया RD DR DR, where R stand for receive, D stand for due, and this was the sequence of application, allotment and call. Okay, so let's make a clear transaction with a example. Let's take an example for this in this regard and try to understand the treatment of the issue of debenture in the books of account of the company, and how let us see how the transactions are recorded as per the rule of double entry system. Okay, so let's start. Suppose we have taken an example that company has issued 1000 debenture of rupees 100 each, ठीक है, at the rate 100 each, which was payable as 20 on application and 25 on allotment, rupees 30 on first call and rupees 25 on second and final call. Suppose we have to make the journal entry, ठीक है, then in this case the accounting treatment will be made as per the rule of double entry system. We will draw the format of journal entry, and the accounting treatment will be made as per the sequence which was discussed before you as RD DR DR. RD means receive and due, DR means due and receive, and DR again means due and receive in the calls transaction. ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि जो ट्रांजेक्शन हमने देखे हैं उसके साथ वैल्यू पुट करते जाएंगे। ये जो फॉर्मेट है हमारा वो फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट वाला ही होगा, और इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे वो ट्रांजेक्शन जो हमने पढ़े थे बेसिकली। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने पढ़ा है कि एप्लीकेशन के रिसीव की एंट्री करते हैं। एप्लीकेशन के रिसीव की एंट्री हमने पढ़ रखी है, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, ठीक है, और टू डिवेंचर जो है डिवेंचर एप्लीकेशन अमाउंट जो है हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अमाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। इसकी अमाउंट की जहाँ तक बात करें हम, तो हमने पढ़ा है कि हमने 1000 डिवेंचर इशू किया है, और इस 1000 डिवेंचर की एप्लीकेशन की कॉस्ट है ₹20, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में एंट्री की अमाउंट हो जाएगी 1000 × 20, दैट इज 20,000, ठीक है। अब इसके बाद जो है सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सेम वैल्यू हमारे क्रेडिट साइड के लिए भी हो जाएगी, और नरेशन हो जाएगी बी डिवेंचर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, ओके। अब इसके बाद जो है हम इसी के एप्लीकेशन के ड्यू की या ट्रांसफर की एंट्री कर लेते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी डिवेंचर को उठा करके हम डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट हो जाएगा हमारा डेबिट में, और इसके बाद जो है आपका 2x% डिवेंचर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेंशन करके डिवेंचर के नाम को हम क्रेडिट कर देंगे, और सेम वैल्यू जो है हमारी रिकॉर्ड हो जाएगी एज रिटेन इन द प्रीवियस साइड, दैट इज 20,000, ठीक है। इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, हम अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करते हैं, और अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री हमारी सेम ऐसे ही होती है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट
डेबिट टू X% डिवेंचर। अब ये X% डिनोट करेगा हमारे उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो हम इशू कर रहे हैं। यहाँ पे इशू प्राइस हो जाएगा हमारा 1000 डिवेंचर का 25 रुपीज़ के हिसाब से 25,000। तो 25,000 डेबिट के और क्रेडिट के कॉलम में हम रिकॉर्ड कर देंगे और इसके बाद जो है इसी के हेल्प से हम इसकी रिसीविंग की एंट्री कर लेंगे और वो एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट और यहाँ पे अमाउंट वही हो जाएगी जो हमने ड्यू में किया है। ड्यू में अमाउंट हमने लिखी है कितनी 25,000, तो वो 25,000 रुपये हमारे ड्यू की अमाउंट को हम डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं आगे की ट्रांजेक्शन्स की तो अल्टीमेटली फर्स्ट कॉल की बात आती है। फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री हम पहले करेंगे और फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री हम करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हम डेबिट करेंगे और इसके बाद जो है टू शेयर सेकेंड शेयर नहीं है, माफ कीजिए, डिवेंचर की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डिवेंचर की बात करेंगे टू X% डिवेंचर। यहाँ पे जो X% है, आई रिपीट आई रिमाइंड दैट इज कूपन रेट एंड कूपन रेट हमेशा जो है क्वेश्चन में मेंशन होगा और अगर नहीं मेंशन होगा तो हमें इस X% को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद सेम इसी की रिसीविंग की एंट्री पास कर लेंगे हम और रिसीविंग की एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, और उसमें भी जो अमाउंट होगी दैट इज 1000 मल्टीप्लाइड बाई 30। ठीक है, यहाँ पे जो भी अमाउंट होगी अमाउंट को हमेशा हम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और वो भी किसके साथ, हमेशा याद रखें अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू प्राइस ऑफ ट्रांजेक्शन की प्राइस को हम क्रेडिट कर देंगे। ये हमेशा याद रखें, ये जो वैल्यू है यही वैल्यू हमारी रिकॉर्ड होगी कहाँ पर, अमाउंट के कॉलम में। ठीक है, और इसी की कंसीडरेशन में इसी को फोकस करते हुए हम आगे की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे सेकंड कॉल की ट्रीटमेंट करते समय हम क्या करेंगे, पहले ड्यू की एंट्री करेंगे और ड्यू की एंट्री में हमारा क्या हो जाएगा, ड्यू की एंट्री में हम शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट या डिवेंचर अगर इशू कर रहे हैं तो डिवेंचर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर। इसकी वैल्यू के समय भी हम क्या करेंगे, 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे और 25 से और वैल्यू आ जाएगी 25,000 एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन एज इट विल बी रिटेन इन द कॉलम ऑफ अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट एंड द सेम थिंग विल बी रिटेन इन द रिसीविंग एंट्री ऑल्सो दैट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसमें भी हम 1000 डिवेंचर को 25 से मल्टीप्लाई करके 25,000 को रिकॉर्ड कर देंगे इन द कॉलम ऑफ अमाउंट। ओके, hope this transaction is very much clear to you and now you are able to record the transaction as per your convenience and you are able to record the accounting treatment in the books of company very much clearly and hope ये सारा ट्रांजेक्शन आपको समझ में आया होगा। आगे की क्लासेस में हम ऐसे और भी ट्रांजेक्शन्स लेंगे ताकि आपको कंपनी के डिवेंचर्स की ट्रीटमेंट बिल्कुल क्लियर हो सके और उसके बाद जो है हम आगे की बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास एंड हैव अ ग्रेट डे।